گورنمنٹ جو ہے ایک بہت ہی ایک یونیک انوائرمنٹ ہوتا ہے گورنمنٹ کے ساتھ کام کرنا. تو اس میں جتنے چیلنجز ہے پھر اتنے اپرچونیٹیز بھی ہے. چیف منسٹر صاحب کا ایک فوکس ہے کہ جی بی کے اندر ایسے ریفارمز کی طرف ہم جائے جس سے جی بی کا جو خطہ ہے اس کا جو ایک لیگل ڈھانچہ ہے وہ مضبوط ہو. اور ساتھ میں سب سے جو ان کا ایک ویژن ہے وہ یہ کہ یہاں کے ادارے اسٹرینتھن ہو, اسٹرانگ ہو. unless and until we will not reforms these institutions from a legal perspective, from an institutional perspective, from a HR perspective, we can't make most of the the financial aid or the package that we are getting from the federal government, knowing the fact that we don't have our own revenue resource. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں آئی میں ہوں شبیر میر. ناظرین, پروگرام روبرو میں آج میرے مہمان ہیں یاسر عباس. ضلع گرجر سے ان کا تعلق ہے اور یہ ان 6 کوآرڈینیٹرز میں شامل ہیں جن کو ریسنٹلی پی ٹی آئی گورنمنٹ نے, گلگت بلتستان گورنمنٹ نے لیا تھا. ان کو لیگل ریفارمز ڈیل کرنے ہیں. یہ جو کہ ڈیزگنیشن کچھ اس طرح بنتی ہے کہ کوآرڈینیٹر ٹو چیف منسٹر آن لیگل ریفارمز. یاسر صاحب بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ میر صاحب فار ہیونگ می اوور. اور ساتھ میں آئی ایم این کے انیشیٹو کا گلگت بلتستان کے لیے آپ لوگوں نے ایک اچھا ڈسکشن کا ایک پلیٹ فارم دیا ہے, سیاسی غیر سیاسی کوشش کی ہے ہم نے. تو کانگریچولیشنز آن دیٹ. تھینک یو ویری مچ. چونکہ اگرچہ ایک مخصوص حلقے میں تو آپ کی پہچان ضرور ہے, لیکن اب ایک گورنمنٹ کے ایک پورٹ فولیو کو آپ نے سنبھالا ہے ہائیسٹ لیول کے اوپر. تو ہم چاہیں گے کہ تھوڑا سا ہم اپنے آڈینس کو آپ انٹروڈیوس کروائیں, تھوڑا سا اپنی تعلیم کے بارے میں, اپنی ابتدا کے بارے میں, پھر کہاں تک آپ نے تعلیم کی, یہ سفر تھوڑا سا بتائیے. ٹھیک ہے. میر صاحب, آئی واز بورن اینڈ ریزڈ ان یاسین. 8ویں تک میں نے اپنی جو ایجوکیشن ہے وہ آخان ڈائمنڈ جوبلی اسکول یاسین سے میں نے حاصل کی. آفٹر 8th آئی جوائنڈ آخان ہائر سیکنڈری اسکول ان گلگت. یہاں سے میں نے ایف ایس سی کی. تو میں کوئی ٹیکنیکل اسٹوڈنٹ نہیں تھا اور نہ ہی میری کوئی انکلینیشن تھی ٹورڈس میڈیکل یا انجینئرنگ اور ٹورڈس اینی ادر نیشنل سائنسز فیلڈس. سو آئی چوز ٹو اسٹڈی انٹرنیشنل ریلیشنز فرام بحریہ یونیورسٹی. یہاں سے میں نے بی ایس آنرس کیا. سو وائل آئی واز a student in Bahriya University in Islamabad, I was associated with different organizations. I happened to work with different senators, different Dadan member of National Assemblies as well. تو اس کے بعد I started working in the Ministry of Planning in Islamabad, where I was working in the Peace and Development unit وہاں پہ. اور بیچ میں مجھے کچھ انٹرنیشنل ٹریول کرنے کا موقع ملا, اینڈ through that I went to different countries to represent Pakistan in few occasions, and at the same time I was very active in youth politics as well. So میں اور ہمارے جو موجودہ فائنانس منسٹر ہیں منور صاحب, ہم یوتھ پارلیمنٹ کا حصہ رہے. وہاں پہ میں یوتھ فورن منسٹر ہوا کرتا تھا. تو منور صاحب کیا ہوا کرتے؟ جی منور صاحب میرے جونیئر تھے, ابھی تو خیر میرے سینئر ہے. وہاں پہ غالباً ہی واز لیڈنگ فائنانس ایز ویل, بٹ آئی ایم ناٹ شیور. And then I got several opportunities to engage myself internationally as well. میں US میں ایک فیلوشپ پہ گیا. تو اسی طرح سے ایک میری پروفیشنل اور کیا کہتے ہیں ارلی لائف. ٹھیک ہے. تو US آپ گئے, US میں آپ نے کیا پڑھا؟ US میں بیسکلی اٹ واز اے پروگرام آف دی US Embassy and the State Department, جو ہر سال پاکستان سے کوئی 10 ایمرجنگ لیڈرس کو وہ اٹھاتے تھے, جس میں ان کو باہر لے جاتے تھے. اٹس کائنڈ آف این ایکسکرجن وزٹ ویئر یو گو اینڈ میٹ ڈفرنٹ آرگنائزیشنز. یو گو ٹو دا سینٹ, یو گو ٹو آل دا لیڈنگ انسٹیٹیوشنس ان دا US سچ ایز دا وائٹ ہاؤس, دا سپریم کورٹ اور یونائٹیڈ نیشنز ایٹسیٹرا. تو اس کے بعد یہاں پہ میں لاء میں نے پڑھی ساتھ میں. اٹ واز این انٹرسٹ ٹو اسٹڈی لاء, شروع سے ہی میرا تھا. اینڈ دین مین وائل آئی ریسیوڈ دا ٹیوننگ ایوارڈ ٹو اسٹڈی ان the UK.
अच्छा, लॉयर किस यूनिवर्सिटी से कॉलेज से आपने किया? मैंने जो LLB है वो यहाँ गिलगित से ही मैंने किया, एक यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर के साथ एक एफिलिएटेड कॉलेज है KLC, बिल्कुल राइट यहाँ से। ठीक है, उसके बाद आप LLM उसके बाद फिर आई वेंट टू डू माई LLM in international human rights law in the UK. So right after my graduation मैं NHS National Health Services के साथ भी वहाँ पे on right to health में उनके साथ काम करता था, और साथ में University of Coventry के साथ on immigrant rights उनके साथ भी मैं काम करता था। कितना मुश्किल होता है वैसे वहाँ की तालीम के बारे में हमने सुना है, लेकिन काम करना एज अ लॉयर कितना मुश्किल होता है या डिफरेंट होता है अगर हम कहें पाकिस्तान? मीर साहब, आई डिडंट प्रैक्टिस एज अ सॉलिसिटर एज अ लॉयर इन द UK, बट आई थोड़ा सा मुझे वहाँ की जो एक वर्किंग मैकेनिज्म थोड़ी बहुत समझ बूझ ये आई है कि वो एक फास्ट पेस्ड और एक पर्पस बेस्ड एक एनवायरनमेंट है जहाँ आपकी प्रोडक्टिविटी मैटर करती है, जहाँ आपकी कॉम्पिटेंसी मैटर करती है, आपकी एसोसिएशन मैटर नहीं करती है, आपका जेंडर मैटर नहीं करता है, आपकी रिलीजन मैटर नहीं करती है। सो इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट एनवायरनमेंट। राइट, तो दिल चाहा कि इधर ही ट्राई किया जाए, अपने फ्यूचर को कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर की जाए कि नहीं? बिल्कुल था, कुछ हमारे वीज़ा की लिमिटेशंस भी थी, क्योंकि आई एम अचीविंग स्कॉलर फ्रॉम द UK, सो दे नेचुरली एक्सपेक्ट यू टू गो बैक, बट इट्स नॉट अ हार्ड रूल। आप रह सकते हो, एक अपॉर्चुनिटी एक्वायर कर सकते हो, लेकिन मेरा अपना एक पर्सनल इंटरेस्ट था कि पाकिस्तान की एक हमारा अपना सिस्टम है, क्योंकि वन ऑफ द पर्पस ऑफ आवर स्कॉलरशिप इज़ टू बेसिकली ट्रेन अस एंड गो बैक एंड गिव बैक टू द कम्युनिटी। सो इसी पर्पस में इसी चीज़ को अपने जहन में रख के मैं वापस आ गया, और यहाँ पे फिर मेरी लीगल इंगेजमेंट रही। यहाँ पे मैं इस्लामाबाद में मैं काम करता था एज एसोसिएट एट द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर इंटरनेशनल लॉ, और साथ में मैं नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स पढ़ाता भी था, क्योंकि मेरा एक शौक एकेडमिया की तरफ भी है। तो आपका मतलब आज जो आप एडवाइज़र हैं, या इससे पहले आपने जो तो डिफरेंट काम किए, क्या ये वही काम है जो कि आप सोचा करते थे कि जो कहते हैं ना कि बड़े होकर हम ये करेंगे, उससे मिलता जुलता था कि नहीं? मीर साहब, गवर्नमेंट जो है एक बहुत ही एक यूनिक एनवायरनमेंट होता है गवर्नमेंट के साथ काम करना। तो इसमें जितने चैलेंजेस है फिर उतने अपॉर्चुनिटीज़ भी है। अभी जो मेरा काम है इट्स एक्साइटिंग एंड इट्स वेरी डाउंटिंग एज वेल। एक्साइटिंग इसलिए कि हम जो एक लीगल रिजीम से इसके ऊपर काम कर रहे हैं, जिससे हमारा सिस्टम बेहतर होगा, जिसमें हमारे राइट्स प्रोटेक्ट होंगे, जिसमें हमारे इलाके का जो स्केलेटन है उसको हम रिफॉर्म और रिफाइन कर सकेंगे। चैलेंजिंग इसलिए है कि ये फिर ये काम करना आसान भी नहीं है। इसमें हर तरह की रेजिस्टेंस है, इसमें आपकी पॉलिसी लेवल पे बहुत से चीज़ों को आपने फिर बहुत सोच समझ के ले जाना होता है, बिकॉज इट्स लीगल अंडरटेकिंग। तो इसमें इट इज़ एक्साइटिंग एंड इट्स चैलेंजिंग एट द सेम टाइम, बट लाइक एवरी अदर फील्ड, एवरी अदर प्लेटफॉर्म, चैलेंज और अपॉर्चुनिटी वो एक मिक्स, एक हाइब्रिड मिक्स है, और उसके साथ ही हमें आगे चलना होता है। कितना अर्सा हो गया आपको इस कोऑर्डिनेटर बने हुए, यानी हैंड्स ऑन आपका 2 महीने का? इट्स सेकंड मंथ, यस। जुलाई में मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी, सो इट्स सितंबर। अच्छा, तो किन किन सेक्टर्स को इस वक्त आप देख रहे हैं जिसकी आपने अभी हल्की सी बात की?
जी, तो मीर साहब जब फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन आई टुक दिस रोल, मेरा जो एक प्राइमरी जो मुझे असाइनमेंट मिली थी चीफ मिनिस्टर साहब के साथ कि हर उस लीगल रिजीम को असर नौ जायज़ा लेना है जो गिलगित बल्तिस्तान में ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, और उसमें चीफ मिनिस्टर साहब का एक फोकस है कि जीबी के अंदर ऐसे रिफॉर्म्स की तरफ हम जाए जिससे जीबी का जो खत्ता है उसका एक जो एक लीगल ढांचा है वो मजबूत हो, और साथ में सबसे जो एक जो उनका एक विजन है वो ये कि यहाँ के इदारे स्ट्रेंथन हो, स्ट्रॉन्ग हो। तो उसमें हमारी जो शुरुआत हुई थी वो हमारी जो हमारा टूरिज़म सेक्टर है यहाँ पे, चीफ मिनिस्टर साहब चाह रहे हैं कि ये एक टूरिज़म सेक्टर एक बहुत ही एक इंटरनेशनल लेवल की एक हमारे पास लेजिस्लेशन और साथ में एक इंफ्रास्ट्रक्चर हम उस तरह करें जिससे हमारी टूरिज़म न सिर्फ सस्टेनेबल हो बल्कि ये एक लॉन्ग टर्म हमारे लिए एक इकोनॉमिक उसका रेवेन्यू का ज़रिया बने। तो इसमें आपको पता है इस तमाम चीज़ के लिए एक लीगल ढांचा चाहिए जिसमें हम इसको रेगुलेट कर सके, जिससे हम डेवलप पॉलिसी तो नहीं कहते हैं जो टूरिज्म पॉलिसी की हम बात करते हैं, क्या ये वही है कि जो आप कर रहे हैं ये थोड़ा सा डिफरेंट है या ब्रॉडर लेवल पे आप? बिल्कुल, थोड़ा सा ये कि पॉलिसी जो है वो फिर एक ऐसी चीज़ है जो विथ टाइम इट विल इवॉल्व, ठीक है। ऑन द अदर हैंड लीगल ये कि हम जो एक्शन लेंगे, जो काम करेंगे, जो डेवलपमेंट ले आएंगे, उनका हमारे पास लीगल बेसिस क्या है, ठीक है, उसके लिए हमें एक लॉ चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारा जो एक टूरिज़्म का जो ये एक मिनिस्ट्री है, इसके अम्ब्रेला में देयर आर 3 अदर डिपार्टमेंट्स, दे आर पार्शली दे आर इंटर रिलेटेड बट नॉट कम्प्लीटली। तो हमें हम ये चीज़ देख रहे हैं कि यार किस तरह हम इनको अलग करें और किस तरह, जिस तरह कल्चर है हमारे पास, आर्कियोलॉजी है, जिस तरह हमारे पास स्पोर्ट्स है, उनको हम किस तरह एम्पावर करें, किस तरह उनको एज अ इदारा हम उनको मजबूत करें, क्योंकि करंटली वो सारे डिपार्टमेंट्स जो है वो एक ही HR जो टूरिज़म का है वो सारा उनको देख लेती है। सो विच इज़ अ चैलेंज, उसकी वजह से इदारे की ओवरऑल एफिशिएंसी जो है इट dwindles। सो वी आर वर्किंग टू एड्रेस all these shortcomings in all the departments of Gilgit-Baltistan। मतलब तमाम सेक्टर्स जिसमें हम बात करते हैं, वैसे हम टूरिज्म के अलावा भी ये भी बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, बिल्कुल हमें लाना होगा, डेवलपमेंट उसके बगैर नहीं होगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें, मिनरल्स, तो इनकी अगेन मेरा ये सवाल है कि क्या बेसिक चीज़ें इनकी हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं, कुछ स्ट्रक्चर स्केलेटन है? बिल्कुल मीर साहब, जैसे कि आपको पता है जब खालिद खुर्शीद साहब की गवर्नमेंट यहाँ पे आई तो सबसे बड़ा जो चैलेंज था उनके लिए कि किस तरह का एक जीबी के लिए हम फाइनेंशियल पैकेज हम ला सके फेडरल गवर्नमेंट से। अब उस फेडरल गवर्नमेंट से पैकेज लाने के बाद हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये कि क्या हमारे जो एक मशीनरी है अभी, क्या हमारे डिपार्टमेंट से आर दे एबल टू पुल ऑफ एंड टू मेक द मोस्ट ऑफ दिस फाइनेंशियल पैकेज। सो जब हम उस चीज़ को देख रहे तो हमारे लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज नज़र आ रहा था वो इदारों की जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ थी। फॉर एग्जांपल जिस तरह आपने कहा मिनरल्स है, जिस तरह हमारे पास दूसरे डिपार्टमेंट में जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, उनको रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, तो हमें ये लगा कि अनलेस एंड अनटिल वी will not reforms these institutions from a legal perspective, from an institutional perspective, from a HR perspective, we can't make most of the the financial aid or the package that we are getting from the federal government, knowing the fact that we don't have our own revenue resource. So either we are going to waste that money or we are going to fix our institutions or direct उनको इस तरह करें कि इससे हम मैक्सिमम हम फ़ायदा उठा सके और वो तमाम डिपार्टमेंट्स उसी तरह ऑटोनमस और एम्पावर हो। और दूसरा रही आप इन्वेस्टमेंट के हवाले से, जीबी गवर्नमेंट का खालिद खुर्शीद साहब का ज़ाती पर्सनल फोकस यही कि यहाँ पे हम एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ हम जाए जिसमें न सिर्फ हम एक क्या कहते हैं रेगुलर फेडरल एड पे या पैकेजेस पे हम रिलाई करें, बल्कि हम एक PPP मूड में दूसरे जितने भी डोनर्स है, दूसरे जितने भी इन्वेस्टमेंट फर्म्स है, उनको हम इंगेज करें। उसमें बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ इन कंसिडरेशन, एंड ऑल्सो वी आर वर्किंग टू स्ट्रेंथन द प्राइवेट पार्टनरशिप मैकेनिज्म इन गिलगित-बल्तिस्तान। राइट। जितना भी आपने काम किया बिल्कुल कम ड्यूरेशन है, 2 महीने अगर हम इसकी बात कर लें, इस दौरान क्या आपको फील हुआ कि जो हम रेड टेप की बात करते हैं गवर्नमेंट के अंदर, क्या वो हिंडर कर रहा है? और दूसरी बात कैपेसिटी कितनी आपको फील हो रही है कि एग्जिस्टिंग स्टाफ के अंदर जिसके थ्रू आपने ये आगे? बिल्कुल पीर साहब, आपको पता है जीबी इज़ अ न्यू प्रोविंस एंड हमारे पास जो इदारों का जो एक स्ट्रेंथ है वो उस तरह नहीं है जिस तरह दुगर क्या कहते हैं उसकी सूबों में है। तो विच इज़ नेचुरल, आई थिंक, विच इज़ अ न्यू प्रोविंस, एंड ऑल्सो आई डोंट थिंक कि जो एक रेड टेपिज्म गिलगित बल्तिस्तान का सबसे बड़ा मसला है एट द मोमेंट।
تو جہاں تک میں جس پیس سے یا جس طریقے سے ہم کام کرنے کی کوشش کریں, مجھے کوئی امیجیٹ ہنڈرنسز یا مجھے کوئی ایک رٹیپزم کہیں سے سچ سبسٹینشیل لیول پہ نظر نہیں آتی. ان فیکٹ وی آر مور اور لیس ورکنگ ایز اے ٹیم, اور جہاں پہ ہمارے بیوروکریٹ حضرات ہیں, ہمارے یا کیا کہتے ہیں ہمارے اسمبلی کے ممبران ہیں, دے بیسکلی ورک ان اے میکینزم جہاں پہ وہ ایک دوسرے کے ایفرٹس کو سپلیمنٹ کر سکیں. بالکل, بہت شکریہ یاسر صاحب, تھینک یو سو مچ, آپ کے ٹائم کا شکریہ, آپ ہمارا پروگرام میں آئے. ناظرین پروگرام دیکھنے کا شکریہ, فیڈ بیک ضرور دیجیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.